Welcome everyone to Garg Institute, and today we will discuss binomial distribution, and it is one of the most important topic in the field of probability. In fact, this topic is covered in the syllabus of 12th, BSc, BCom, BBA, BTech and even MSc. Whenever you have a probability in your syllabus, you will have binomial distribution in it. Binomial distribution was first discussed by Mr. Bernoulli in 1700, and it says when a random experiment is performed repeatedly under the same circumstances, then one repetition is called a trial. Okay, then what we have, whatever, if we want to have some success cases, some failure cases, and the probability of occurrence of a particular event is called success, and probability of non-occurrence of this event is called failure. Now we can say, in by definition, binomial distribution is represented as BNP is equal to Px equal to NCx P raised to power x Q raised to power n minus x if x lies between 0, 1, 2 up to n and 0 is otherwise. That is, a binomial distribution that is represented by BNP is said to be following binomial distribution if its probability mass function Px is given by NCx P raised to power x Q raised to power n minus x if x lies between 0 to n and 0 otherwise, and also it has only positive values. Now we can say, when the terminology is used is n is where total number of trials, and C for normal mathematical notation combination, P for probability of success, and Q is probability of failure. Also this is equal to 1 minus P, and this x is number of success. Okay, now you can say binomial distribution is nothing but Px equal to NCx P raised to power x Q raised to power n minus x. Now we can say how it is probability distribution. You all know the probability, in some case of probability distribution, sum of probability is 1. Now first of all we will like to prove that why we are saying that is probability distribution. चलिए एक काम करते हैं, इसको प्रूव करना है सबसे पहले कि इसके अंदर प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 कैसे आता है. तो x कितना हो सकता है बच्चे? x हो सकता है अपना 0 से लेकर के n तक. ओके, नाउ व्हेन x इक्वल टू 0, दिस इज nc0 p रेज टू पावर 0 q रेज टू पावर n प्लस nc1, you can say p0 plus p1 plus pn. This should be equal to 1, and in this case this is nc0, nc1 plus nc2, and similarly ncn p raised to power n q raised to power 0. अब आप देख सकते हैं कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉलो करता है. क्लास 11th का टॉपिक है ये, और इसका क्या बोलता है, यदि आपको याद है तो x प्लस वाई की पावर n का क्या होता है बेटा? x प्लस वाई की पावर में होता है nc0 x की पावर 0 y की पावर n प्लस nc1 x की पावर n y की पावर n माइनस 1, एंड एट लास्ट ncn x रेज टू पावर n y रेज टू पावर 0. जब आप इन दोनों को कंपेयर करें, यदि इन दोनों फार्मूलाज को आप कंपेयर करते हैं तो ये चीज़ किसके बराबर आएगी? दिस विल बिकम p प्लस क्यू रेज टू पावर n. ओके, नाउ p प्लस क्यू कितना होता है? p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. Therefore this is probability distribution. Okay, now we will move towards our next topic, physical conditions of binomial distribution. मतलब अब किन किन कंडीशंस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं और किन कंडीशंस में आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगा सकते हैं. ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जब आप न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं. तो आपको क्वेश्चन देख के ये पता करना होता है कि इस पे बाइनोमियल लगेगा, पॉइसन लगेगा, नॉर्मल लगेगा या एक्सपोनेंशियल लगेगा, गामा लगेगा. बहुत सारे करीब
15 to 20 आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उन डिस्ट्रीब्यूशन में किस कंडीशन पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना है, उसकी फिजिकल कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ने का या डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसकी 4 कंडीशंस हम लोग मानते हैं फिजिकल कंडीशंस, दैट देयर आर ओनली 2 आउटकम्स टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, exhaustive you can say, and disjoint outcomes। मतलब आपकी जो आउटपुट आएगी एक ट्रायल की, उसमें सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो आएगी उसमें सक्सेस या आएगा फेलियर। एक चीज़ आ सकती है, दो तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कॉइन टॉस करता हूँ, तो कॉइन टॉस करने के बाद मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सिमिलरली मैं डाइस रोल करता हूँ, तो डाइस रोल करते वक्त मेरे पास 6 पॉसिबिलिटी हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगेगा यदि आप 6 पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। पर इसी क्वेश्चन के डाइस के केस में यदि मैं बोलूँ कि नंबर ग्रेटर देन 4 और ए नंबर लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू 4, देन यू कैन से कि यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो सकता है, क्योंकि आपके पास 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो सक्सेस या फेलियर। सेकेंड कंडीशन इज एन इज फाइनाइट। नंबर ऑफ ट्रायल्स इस केस में आपके पास फाइनाइट होने चाहिए, और हम लोग इन जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि जब इफ नंबर ऑफ ट्रायल्स आर ऑलमोस्ट इक्वल टू 25, लेस देन इक्वल टू 25, देन वी कैन यूज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और यदि आपका ये जो चॉइसेस है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है 25 से ऊपर जाता है और आपकी प्रोबेबिलिटी भी ठीक ठाक रहती है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को टेंड्स कर जाता है। तो हम इसमें सैम्पल साइज का स्पेशल ध्यान रखना होता है कि आप इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, फिक्स रहने वाला है। थर्ड कंडीशन आपकी है P is same in each trial। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो आपकी रहेगी वो हर ट्रायल के अंदर सेम रहेगी, और इसके अंदर आप चेंज नहीं करेंगे। चेंज ना करने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं आपके पास कार्ड्स ड्रॉ कर रहा हूँ। कार्ड्स ड्रॉ करते वक्त जब पहला कार्ड मैंने निकाला तो कितने पत्ते होंगे टोटल? इसके पास 52 होंगे। इन केस आई रिप्लेस द कार्ड ऑन द डेक अगेन, देन द नेक्स्ट टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी सेम। पर यदि मैं विदाउट रिप्लेसमेंट करूंगा तो नेक्स्ट टाइम पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी चेंज हो जाएगी। तो यदि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगली बार में चेंज हो रही है तो आप कहेंगे कि यहाँ पे आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगा सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। जो आपकी ट्रायल है उसका पहले का दूसरे पे असर और दूसरे का तीसरे पे असर नहीं होना चाहिए। हर एक ट्रायल आपस में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तभी आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं। अब इसमें कुछ कह सकते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी के किन क्वेश्चन में बाइनोमियल एग्जांपल्स यदि हम क्रिएट करना चाहें अपनी तरफ से कि किन केसेस में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं, किन केसेस में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगा सकते हैं। तो आप ये देखिए, इन केस ऑफ कॉइन्स, टॉसिंग ए कॉइन्स, इन केस ऑफ कॉइन्स यू कैन यूज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जब दिल करे तब करो, क्योंकि कॉइन में आपका हर टॉस पिछले से अलग होता है। आपका हर बार नंबर ऑफ ट्रायल्स यदि आपका है 25 से कम है तो आप बाइनोमियल इजीली लगा सकते हैं। इसमें सोचने की भी ज़रूरत आपको नहीं होती है। फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, इस टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। इन ए फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, हाउ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी 2 आर बॉयज एंड 1 इज गर्ल, what is the probability 2 are girls and 1 is boy, all are boys or at least 1 is boy। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीली लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास 2 ही केसेस हैं, या तो बॉय है या गर्ल है। और इसमें तो बच्चे ट्रायल भी आपके 25 से ज़्यादा जाने की बहुत कम उम्मीद है। तो इसका इसमें आप कह सकते हैं कि जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है बाइनोमियल फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ डाइस विद सक्सेस और फेलियर केस, सक्सेस और फेलियर केस मीन्स जब आप कहते हैं कि 2 डाइस आर टॉस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल सम इज़ मोर देन 6 और सम इज़ लेस देन 6, और डाइस इज टॉस्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट ए नंबर मोर देन 4। इस टाइप के क्वेश्चनों में आपके पास 2 ही हैं, या तो सक्सेस है या फेलियर है। बट प्लस पॉइंट क्या रहेगा, डाइस के केस में हर बार प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम रहेगी, और हर बार आपका जो ट्रायल रहेगा वो इंडिपेंडेंट आएगा। पिछली बार आया था उससे इसका कोई लेना देना होता नहीं है। कार्ड्स विद रिप्लेसमेंट ऑब्लिक
ओनली वन टाइप, मतलब कार्ड्स आप विद रिप्लेसमेंट करेंगे, कार्ड निकाला और आपने रिप्लेस किया, और सिर्फ एक टाइप का यदि आप कार्ड निकालना चाहते हैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई कैन ड्रॉ 4 कार्ड्स and the I say success is to get a ace, okay, then each trial the probability of success will be, there are 4 cards in the card deck now, 4 cards in the deck, 4 aces and 52 cards in total, therefore the probability of success will be 4 by 52 in first case, and if I am using with replacement it is again 4 by 52, but the problem is if I am using without replacement, the next time the probability of success will be different, therefore in that case binomial is not applicable. Cards, in case of balls also you can use बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. क्यों? क्योंकि बॉल्स में फिर वही कंडीशन है कि आपके पास एक ही तरह की बॉल निकालेंगे, आप दूसरे कलर की बॉल नहीं निकालेंगे. आपके पास 3 कलर की बॉल्स पड़ी हैं, ग्रीन, रेड एंड वाइट करके, तो आप सिर्फ वाइट कलर की बॉल निकाल रहे हैं, वो भी विद रिप्लेसमेंट, तो आप बाइनोमियल फॉलो कर सकते हैं. पर आप 2 ग्रीन 2 वाइट निकालेंगे तो बाइनोमियल फॉलो नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे एक जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो यदि मैं इसके फॉर्मूला फॉर्म सेक्शन के अंदर जाके मैं लिखना चाहूँ तो पी एक्स क्या होगा बेटा? पी एक्स होगा आपका एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स. एक फॉर्मूला जो आपने अभी तक मैंने कराया नहीं है, एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू द प्रूफ. मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एन पी एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एन पी क्यू. यहाँ पे सिर्फ 3 फार्मूला हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉलो करते हैं. एक फार्मूला और आता है रिकरेंस रिलेशन, बट रिकरेंस रिलेशन का फार्मूला जो है यदि आप बीटेक में हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं. अब 12th क्लास में यदि आप हैं और आप बीसीए वगैरह में हैं तो आप यूज़ ना ही करें, क्योंकि फार्मूलाज वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. बट यदि आप करना चाहें तो रिकरेंस रिलेशन लास्ट में करेंगे हम, क्योंकि इन सभी के प्रूफ्स हम लास्ट में करेंगे. पहले हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, बाद में हम इनके फार्मूलाज के प्रूफ करेंगे. तो सबसे पहला जो फार्मूला बनता है अपना, फार्मूला छोड़े, सबसे जो इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है, और सभी आपको सभी बुक्स के अंदर, इनफैक्ट हर एक बुक, कोई भी बुक आप उठा लें उसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन शायद यही मिलेगा. 10 coins are tossed, 10 coins are tossed, what is the probability of getting at least 7 heads. बच्चे कोई भी बुक देख लेना जहाँ पे भी बाइनोमियल का क्वेश्चन किसी भी बुक का होगा, उसका पहली बुक का क्वेश्चन, बुक का पहला क्वेश्चन यही होगा. देखो, किसी भी बाइनोमियल के क्वेश्चन के अंदर आपको 2 चीज़ें निकालनी होती हैं. यदि आप 2 चीज़ें निकाल पाते हैं तो बाइनोमियल का हर एक क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे. क्या? कि आपकी नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है, n. ठीक है, और उसके बाद आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है, थर्ड क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि सक्सेस डिपेंड करता है कि आप बोल क्या रहे हो. फॉर एग्जांपल, यदि आपने कॉइन टॉस किया, सामने वाले ने कहा हेड, तो उसके लिए हेड सक्सेस है, पर आपके लिए टेल सक्सेस है. तो जो क्वेश्चन में जो बोला जाएगा वो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है इसमें कि आपके ए हॉर्स इज रनिंग इन ए रेस एंड क्रॉसिंग ए हर्डल इज ए सक्सेस, बट वो क्या कहता है कि ही हैड टू क्रॉस 10 हर्डल्स. तो क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन लेस देन 2. तो नॉक डाउन आपका सक्सेस होगा. ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव सेंस मैटर नहीं करती है, पॉजिटिव सेंस कोई मैटर नहीं करेगी, कॉमन सेंस का कोई मीनिंग नहीं है. मीनिंग किस चीज़ का है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो पहले बिना सोचे समझे पी और क्यू निकाल लेते हैं. वो नहीं निकालना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, और उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पहले ये डिसाइड करना है कि आपकी सक्सेस है क्या. ओके, तो उसके बाद कहते हैं कि उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. 99% क्वेश्चन में इजीली निकल आती है. और उसके बाद आपको चाहिए कि सक्सेस कितनी है. चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं. हाउ मेनी कॉइन्स आर टॉस्ड? 10 कॉइन टॉस किए बेटा उसने. सक्सेस क्या है आपकी? आपकी सक्सेस है हेड्स की. ठीक है, हेड आना आपकी सक्सेस है. तो हेड का मतलब क्या हुआ, पी. एक कॉइन के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी हुई यहाँ पे, 1/2, बिकॉज या तो हेड होगा या टेल होगा. नेक्स्ट वी हैव क्यू. क्यू इज 1 - 1/2, दैट इज 1/2. मैंने आपसे कहा कि 3 चीज़ें चाहिए मुझे, एन पी, और साथ में क्या चाहिए, कितनी सक्सेस आपको चाहिए. तो उसने क्या बोला बेटा, एटलीस्ट 7 हेड्स. तो एटलीस्ट 7 हेड्स क्या हो जाएगा बच्चे, 10 ट्रायल्स हैं
तो आपके पास कितने हेड आ सकते हैं? आपके पास 7 हेड आ सकते हैं, आपके पास 8 भी हेड आ सकते हैं, आपके पास 9 हेड आ सकते हैं और आपके पास 10 हेड आ सकते हैं। ओके, P7 कितना हुआ? P7 हुआ आपका 10C7 P raised to power 7 Q raised to power 3, because what is formula? P raised to power x Q raised to power n minus x, plus 10C8 P raised to power 8 Q square, plus 10C9 P9 Q, plus 10C10 P raised to power 10 Q raised to power 0. Okay, now we have to open this. What we know? P is 1 by 2 and Q is 1 by 2. Now put the values. What we will get? 10C7 1 by 2 raised to power 7 1 by 2 raised to power 3, plus 10C8 1 by 2 raised to power 8 1 by 2 square, 10C9 1 by 2 power 9 1 by 2, plus 10C10 1 by 2 raised to power 10. इसके बाद जो मेन इशू बचा, यदि आप ध्यान देंगे तो कितना आ रहा है बेटा? 1 by 2 की पावर 10 सबके अंदर है, सबके अंदर कॉमन क्या है? 1 by 2 रेज टू पावर 10। तो 1 by 2 रेज टू पावर 10 का को आप क्या कर सकते हैं? आप इसे कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 by 2 10 को कॉमन निकालने के बाद कितना बना ये? 10C7 प्लस 10C8 प्लस 10C9 प्लस 10C10। अब जो मेजर इशू अपने पास बचता है ना बच्चे, वो कई बार जिन बच्चों के पास 11th में मैथमेटिक्स नहीं होता है और बीकॉम और बीसीए वगैरह में उन्हें करना पड़ता है, तो इन्हें कॉम्बिनेशन निकालने में दिक्कत आती है। यदि साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास है तब तो आप इजीली निकाल लेंगे। इन केस आपके पास नहीं है तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? NCR इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और n फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है बेटा? 1 2 1 से आप मल्टीप्लाई करते चले जाएं कहाँ तक? n तक। तो इसका मतलब क्या हुआ अपने पास? अपने को चाहिए 10C7 दैट इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, तो 10 फैक्टोरियल इसके बच्चे कैसे लिखेंगे हम? बड़े फैक्टोरियल को काटने के लिए क्या करना पड़ता है? बड़े फैक्टोरियल को काटने के लिए आप छोटे फैक्टोरियल तक डिक्रीज करते हुए चले जाओ, और नीचे क्या आएगा आपके पास? 7 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल को आप पूरा ओपन कर दो। तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया, 3 4 द नंबर ऑफ केसेस इज 120। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 by 2 रेज टू पावर 10 120। सिमिलरली 10C8 मैं साइड में जाके कर देता हूँ एक बार। 10C8 आएगा बेटा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज 10 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2, इट कम्स आउट टू बी 45। इसको करके देख लेना, ये आएगा आपके पास 10 और ये आएगा आपके पास 1। ओके, तो कितना बन गया आपका? 2 रेज टू पावर 10 कितना होता है? 2 रेज टू पावर 10 तो जनरली आप लोगों को सबको पता होता है। क्यों? क्योंकि ये 1 GB में कितने MB होते हैं वो फिगर होती है, दैट इज़ 1/2 रेज टू पावर 10। तो 1 GB में कितने MB होते हैं? 1024। तो 2 रेज टू पावर 10 इज दिस। तो कितना बना है यहाँ पे? 6 6। Okay, so this is 176 by 1024. Probability that we will get more than 7 heads is 176 divided by 1024. Now we will move to our next question, and it says in a family of 5 children, what is the probability of getting 2 boys 3 boys? I am taking all the cases, possible cases. In 800 families of 5 children, how many families has first case 2 boys 3 girls, second case all boys,
थर्ड केस एटलीस्ट वन बॉय एंड लास्ट इज नो बॉय, या फिर इसको करते हैं एट मोस्ट वन बॉय, एट मोस्ट वन बॉय। ओके, तो हमने एक साथ इसमें कितने क्वेश्चन डाल दिए, एक साथ हमने इसमें 4 क्वेश्चन डाल दिए। कौन से 2 बॉयज़ 3 गर्ल्स का क्वेश्चन डाला। उसके बाद हमने क्वेश्चन डाला इसमें सभी के सभी जब बॉयज़ हैं आपके पास। तीसरा क्वेश्चन क्या डाला हमने, एटलीस्ट वन बॉय है अपने पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, एट मोस्ट वन बॉय। तो सबसे पहली बात बेटा क्या है कि यहाँ पे ना 2 फिगर होती हैं, इसको लेकर यार कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि यार इसमें 800 है या 5 है। ओके, अब इशू क्या होता है कि जो 800 फैमिलीज, देखो हम किसी भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में 2 चीज़ें चाहते हैं। कई बार तो प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, कई बार नंबर पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपके से, नंबर पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा है वो। एक्चुअली होता क्या है कि मैंने एक सिक्का उछाला तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। बट यदि एक सिक्के को मैंने 800 बार उछाला तो कितनी बार हेड आएगा, कितना उम्मीद करते हो कि हेड आएगा, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, आप कहोगे 400 बार हेड आना चाहिए। 400 बार हेड आएगा मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट 400, मतलब 400 टाइम्स के आसपास हेड आएगा। ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट 400 आए, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा रहेगा। वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसे हम बायस्ड कहेंगे, किसे अनबायस्ड कहेंगे। तो बट इसके बारे में क्या कहेंगे कि हमारा कोई भी कॉइन यदि है, यदि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कॉइन की प्रोबेबिलिटी है 1/2। बट यदि 800 टाइम्स मैंने कॉइन को टॉस किया तो आई एम एक्सपेक्टिंग 400 टाइम्स। तो नंबर में जब कन्वर्ट करना पड़ता है तो प्रोबेबिलिटी को नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, इसी तरीके से यदि आप कहो कि जी आपने वही डाइस रोल की, डाइस रोल करने के बाद कई बार क्या होता है कि यार 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी, जैसे अपना लूडो खेल रहे हो, मान लो लूडो खेलते हुए 1 और 6 पे आपकी गोटी खुलती है ना। तो जब आपने लूडो खेला तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ये है कि आपके पास 2 फेवरेबल केसेज हैं और 6 आपके पास टोटल केसेज हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी बनती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बनती है 1/3। इसका मतलब क्या होता है कि 3 बार में जब आप डाइस थ्रो करोगे तो एटलीस्ट एक बार आपके पास, एक बार वो आना चाहिए, 1 या 6। बट ऐसा कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। बट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से यदि मैं 100 बार मान लो, 100 बार यदि मैं मान लो कॉइन डाइस को टॉस करता हूं तो 1 और 6 कितनी बार आएगा, 100/3 टाइम्स उसको आना चाहिए। क्यों, प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 और कितनी बार आपने टॉस किया, 100 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो 1/3 है, बट नंबर के लिए क्या करेंगे आप, उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी यही चीज़ है, यहाँ पे 800 फैमिलीज हैं पर प्रोबेबिलिटी फैमिलीज के अंदर नहीं है। वो तो फैमिलीज आपने चूज कर ली जहाँ पे 5 बच्चे हैं, बट यहाँ प्रोबेबिलिटी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो इस केस में मेरे पास n कितना होगा बेटा, n हो जाएगा मेरे पास 5। बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी 1/2, गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी अगेन 1/2। तो दोनों चीज़ें निकल गई। मैंने आपसे क्या कहा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो मैंने पहली वर्डिंग लिखी थी वहाँ पे लिखा था BNP। इसका मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए बाईवेरिएट। बाईवेरिएट मतलब यदि आपके पास 2 चीज़ें हैं तो बाइनोमियल में कुछ भी निकाल सकते हो। क्या क्या, आपके पास एक तो n है और एक p है, आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमने n निकाल लिया, p निकाल लिया, उसके बाद तो एक ही चीज़ बचती है, वो बचता है अपना फार्मूला, कौन सा, NCx p⁻x q⁻n−x का। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ फैमिलीज, पहले निकालिए बेटा प्रोबेबिलिटी, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉयज़। सक्सेस किसको मान रहे हैं हम, बॉयज़ को मान रहे हैं, इसलिए 2 लिख रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रहा था यदि मैं सक्सेस गर्ल्स को मानता, यदि मैं सक्सेस गर्ल्स को मानूंगा तो यहाँ पे x की जगह कितना आ जाएगा, x की जगह यहाँ पे 3 आ जाएगा। 2 सक्सेस है तो फेलियर 3 है। तो सक्सेस और फेलियर आपके ऊपर डिपेंड करता है किसे सक्सेस मानते हो। तो P2 कितना हुआ, 5C2 1/2 एंड 1/2 ओके। 5C2 बेटा अभी 2 मिनट पहले हमने डिस्कस किया था, 5C2 कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 1/2 ओके। 1/2 कितना होता है बेटा, 32। 5 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा, मैंने कहा था 5 फैक्टोरियल को डिक्रीज करते करते आप छोटे फैक्टोरियल तक ले जाएंगे। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, आई गॉट 10/32। तो 2 बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10/32।
32 बट टू गेट द नंबर ऑफ फैमिलीज क्या होंगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपको टोटल ट्रायल से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द नंबर दैट इज 250। तो 250 फैमिलीज 800 में से ऐसी होंगी जिनके पास कितने होंगे, जिनके पास 2 लड़के होंगे और 3 लड़कियां होंगी। नेक्स्ट केस पे आइए, सेकेंड केस, ऑल आर बॉयज। बेटा एन तो फिक्स है, पी भी फिक्स है और क्यू भी फिक्स है, बट एक्स यहाँ पे चेंज हो गया। ऑल आर बॉयज का मतलब मुझे सक्सेस सारी चाहिए, P5 चाहिए मुझे, यस और नो। यदि मुझे P5 चाहिए तो क्या हो जाएगा, 5C5 1/2 raised to power 5 1/2 raised to power 0 that is 1/32। ओके, 5C5 की वैल्यू बेटा 1 होती है, क्यों, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा बेटा इसमें, तो 25 फैमिलीज ऐसी होंगी जिनके पास 5 बॉयज होंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटलीस्ट 1 इज बॉय। दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट, चलिए यहाँ से करते हैं, एटलीस्ट 1 इज बॉय। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है, क्या एटलीस्ट 1 इज बॉय का मतलब क्या हुआ बेटा, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 1 बॉय भी हो सकता है, 2 बॉयज़ भी हो सकते हैं, 3 बॉयज़ भी हो सकते हैं, 4 बॉयज़ भी हो सकते हैं और 5 बॉयज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। बट इस केस में अब दिक्कत क्या आ रही है, 5 केस निकालना तो महाभारत है, 5 केस नहीं निकाल पाएंगे आप। तो अब इसके अंदर एक प्रोबेबिलिटी का रूल होता है, प्रोबेबिलिटी का एक रूल क्या बोलता है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमेशा पूरी 1 होती है। तो इसके हिसाब से कितना हुआ, P0 प्लस P1 टू P5 इट इज़ 1, क्योंकि सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो यदि मुझे ये चीज़ें चाहिए तो सिंपल अलजेब्रा को यूज़ करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस P0 को उठा के उधर लेके जा सकता हूँ। तो P2 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 इज 1 माइनस P0, गॉट इट। तो इसका मतलब मुझे अब क्या चाहिए, मुझे सिर्फ P0 निकालना है, 5 चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा इन केस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यदि आपको ये देखना पड़ता है कि आपको कौन सा एंगल बढ़िया रहेगा, एटलीस्ट एट मोस्ट के केस में आपको ये वाली सिचुएशन कई बार मिलेगी, और आपको यदि कोई इस टाइप की सिचुएशन मिले तो आपको कौन से रूल को मेजर करना है कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। उस रूल को यूज़ करते हुए यदि आप अपने कैलकुलेशन वर्क को छोटा कर सकें तो आपको करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बना बेटा, P0 निकालना बचा ना मुझे, P0 बच्चे बनेगा 5C0, ओके, 1/2 रेज टू पावर 0 एंड 1/2 रेज टू पावर 5, तो यू कैन से 1/32। और प्रोबेबिलिटी कितनी बनी, 1 माइनस 1/32 दैट इज 31/32, ओके। यू कैन कैलकुलेट इट एंड यू फाइंड दैट इट इज़ नंबर, यदि आप इसका कैलकुलेट करते हैं तो नंबर आएगा इसका 775। 800 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आ जाएगा आपका 775। तो 3 क्वेश्चन हमने कर दिए। उसके बाद क्या क्वेश्चन बचता है, एटमोस्ट 1 इज बॉय, ये आपके लिए छोड़ूंगा मैं। एटमोस्ट 1 इज बॉय का मतलब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बेटा P0 प्लस P1। फोर्थ पार्ट की यदि मैं बात करूं तो आपको क्या चाहिए, एटमोस्ट 1 मतलब P0 P1। तो इसकी P0 की प्रोबेबिलिटी तो बेटा अभी निकाली थी हमने, कितनी आई थी 1/32। ये कितना बना 5C1 1/2 रेज टू पावर 1 1/2 रेज टू पावर 4, देयरफॉर 1/32 प्लस 5/32 दैट इज 6/32। तो ये तो आपकी आगे प्रोबेबिलिटी। बट यदि आप इसको नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 800 से, और 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 150। नाउ वी विल डू सम ऑफ द क्वेश्चंस। सॉरी बेटा, एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है कि 5 लिख दिया गलती से मैंने, और ये होना चाहिए था 5 माइनस टू लिखना। The first question is, a policeman fires 6 bullets on a docket. The probability that the docket will be killed by a bullet is 0.6.
what is the probability that the docket is still alive? So as per questions we are given that the policeman tries 6 bullets, it means n is equal to 6. That the bullet will hit the target is 0.6 and bullet will not hit the target is 0.4. Now the question is docket is still alive. Now it is up to you on what you think it is a success. For policeman, hitting a target is success and for docket not hitting a target is a success. ठीक है, तो मान लीजिए यदि मैं P मानता हूँ तो P is the probability success for policeman. तो so Q will be 0.4, that is you can say 6 by 10 or 3 by 5, and it will be 4 by 10 or 2 by 5. Okay, now the issue is X, number of success. You are thinking from policeman point of view, therefore he has no success because this docket is still alive, therefore X will be equal to 0. Okay, जब आपका X 0 आ रहा है तो NCX क्या होता है बाइनोमियल में? बाइनोमियल में आपका जो PX होता है वो होता है NCX P रेज टू पावर X Q रेज टू पावर n माइनस एक्स. ओके, तो यहाँ पे क्या बना आपका 6C0 3 by 5 raised to power 0 and 2 by 5 raised to power 6. Answer is 2 by 5 raised to power 6. Okay, now the next thing is, next question is, in a hurdle race a player has to cross 10 hurdles. Then how many hurdles he has to cross? He has to cross total of 10, therefore n is 10. The probability that he will clear the hurdle is 5 by 6. It means he will knock down a hurdle is 1 by 6. So as per previous questions I have discussed with you, you are not going to decide what is P and what is Q unless you check the question. Now probability that he will clear the hurdle is 5 by 6, probability that he will not clear the hurdle is 1 by 6, and what is the probability that he will knock down less than 2 hurdles? Less than 2 hurdles means knockdown is your success point of view. Then P will be 1 by 6, Q will be 5 by 6, less than 2. Fever means less than 2 means I need P0 plus P1. Okay, now P0 कितना हो जाएगा? P is 10C0 1 by 6 raised to power 0 and 5 by 6 raised to power 10 plus 10C1 1 by 6 raised to power 1 and 5 by 6 raised to power 9. You can see 5 by 6 raised to power 10 plus 10 into 1 by 6 and 5 by 6 power n. You can see that 5 by 6 raised to power 9 is common. I can have 5 by 6 plus 10 by 6. Okay, therefore it is 5 by 6 power 9 and it will be 15 by 6. Okay, so this is the probability that he will knock down less than 2 hurdles. Okay, now we will move towards the next question. By the next question is, the probability that a man is 60 will live up to 70 is 0.65. What is the probability that out of 12 such men, at least 11 will reach their 51st birthday? At least, sorry, their 71st birthday. Okay, means 60 साल का आदमी 70 साल तक जिएगा, इस बात की probability 0.65 है, और इसका मतलब वो ये नहीं जिएगा तो इस बात की probability 0.35 है. Means he will live 0.65, he will die 0.35. What is the probability that 12 such men, n is 12, 11 will reach their 71st birthday? At least 11 will reach, मतलब either one will die or one will die. It means क्वेश्चन में मैंने क्या लिया? मैंने डेथ को आपने सक्सेस माना है. तो यहाँ पे P0 प्लस P1 हो गया. तो P0 प्लस 1 के केस में अब मुझे क्या चाहिए? P will be 0.35
एंड Q विल बी 0.65। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिंदा रहना आपका फेलियर हो गया है। तो P0 कितना हुआ बेटा? P0 विल बी 12C0 0.35 रेज टू पावर 0 0.65 रेज टू पावर 12 प्लस 12C1 0.35 power 1 and 0.65 power 11. You can see that 0.65 power 11 I can take common. इसमें से कितना आएगा? 0.65 plus 12 into 0.35. Okay, then 0.65 power 11, 0.65 plus ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी 5.4, दैट इज 0.65 पावर 11 इंटू 6.05. So this is your final answer. The next question is, in a lot of 500 solenoids 25 are defective. Okay, तो टोटल कितना 25 डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बची है? डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है आपकी 25/500। सिमिलरली ओके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 475/500। यू कैन से 1/20 एंड 19/20। अभी तक मैंने पी और क्यू नहीं लिखा है क्योंकि मुझे नहीं पता कि सक्सेस क्या है और फेलियर क्या है। उसके बाद कहते हैं रैंडम सैंपल ऑफ 20, एन कितना है आपका? एन इज गिवन टू बी 20। तो डिफेक्टिव होना पूछ रहा है अपने से वो। डिफेक्टिव होने का मतलब P इज़ 1/20 एंड Q इज इक्वल टू 19/20। तो क्या कहता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 0, 1, 2 आर डिफेक्टिव सोलिनॉइड्स इन द सैंपल ऑफ 20। तो x की वैल्यू कितनी कितनी पूछ रहा है आपसे? अलग अलग पूछ रहा है वो आपसे। P0 पूछ रहा है। P0 का मतलब क्या होता है? P0 का मतलब हो जाएगा आपका 20C0 एंड 19/20 रेज टू पावर 20। यू कैन से 19/20 पावर 20। सिमिलरली P1 कितना हो जाएगा? P1 हो जाएगा आपका 20C1 19/20 रेज टू पावर 19 एंड 1/20, दैट इज 20 इंटू 19/20 पावर 20, 19 दैट इज 19/19 पावर 19/20 पावर 19। सिमिलरली P2 कितना हो जाएगा? P2 इज 20C2 19/20 पावर 18 एंड 1/20 पावर 2। कितना आया? 20C2 कितना आएगा आपका? 20 19 1 2 इंटू 1/400 इंटू 19/20 पावर 18। ओके, तो दीज आर सम बेसिक क्वेश्चंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन बाइनोमियल में होते भी नहीं है। एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें लोग मानते हैं वो होता है फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। और फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जनरली का बीटेक और बीसीए में आपको सब जगह मिल जाएगा। जब यदि आप क्लास 12th की बात करेंगे तो क्लास 12th में आपको फिटिंग नहीं मिलेगी, बट बीएससी और बीटेक के केस में आपको फिटिंग मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन विल बी फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। द क्वेश्चन इज फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहली बात ये आती है कि ये फिटिंग का मतलब क्या है। हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, इन ए फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन 800 फैमिलीज वर देयर एंड हाउ मेनी फैमिलीज विल यू विल एक्सपेक्ट टू हैव 2 बॉयज़ 3 गर्ल्स, ऑल बॉयज़ ऑल गर्ल्स। इट मीन्स आपके पास नंबर ऑफ फैमिलीज आपसे पूछी गई थी। तो उस केस में क्या फॉलो हो रहा था कि उस केस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रहा था। बट अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अपने को नहीं पता कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस पे है या नहीं है। और एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे, वो ये पूछना चाहता है कि यदि इस पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो इसकी फ्रीक्वेंसीज़ क्या होती। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि यदि इसकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो इसकी फ्रीक्वेंसीज़ क्या होती है। इसका मतलब हमने इस डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें इशू क्या आता है, इसमें हमें कुछ नहीं पता, बट हमें एक बात पता है कि मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एनपी होता है। ठीक है, तो मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एनपी होता है। तो आपको एक बात अच्छी तरह पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक ही चीज़ इशू होते हैं, दो ही चीज़ों का इशू होता है, एक एन का और एक पी का। यदि एन और पी मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होती है। एन की वैल्यूज़ आपको पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में
एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, एक्स की वैल्यू 0 से n तक वेरी करती है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 4 तक वेरी कर रही है, तो इसका मतलब n कितना हो गया इसका, मेरे पास n की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 4 आ गई। तो यदि मैं इसका मीन निकाल लूँ और मीन की वैल्यू कितनी है np, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, p मिल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे मीन निकालना है। तो x कितना है 0 1 2 3 4 और f कितना है इसका 30 62 46 10 एंड 2 एंड द लास्ट थिंग इज xf ठीक है। मीन का फार्मूला क्या होता है बेटा, मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ओके, तो एफ आई कॉलम का जो टोटल आता है यदि मैं करता हूँ तो ये आता है 150, ये कितना आ रहा है 192। ओके, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, x की वैल्यू 150 है और xf की वैल्यू 192 है। तो मीन कितना बना मेरा, मीन बना मेरा 192 डिवाइडेड बाई 150 और यदि मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ तो मुझे मिलता है 1.28। नाउ 4p is equal to 1.28, therefore p is equal to 1.28 by 4, that is 0.32, and q will be 1 minus p, that is 1 minus 0.2, that is 0.68। तो मेरे पास अब तीनों चीज़ें हैं, मेरे पास बाइनोमियल का एन भी है, पी भी है, क्यू भी है, तो आई कैन फाइंड आउट एवरी प्रोबेबिलिटी। Many a times there are many books we say the fitting of binomial distribution means n into p plus q raised to power n। ये फिटिंग के लिए सिर्फ इतना फार्मूला यूज़ करते हैं काफ़ी बुक्स। रीज़न p प्लस क्यू रेज टू पावर n बाइनोमियल एक्सपेंड करता है, ये आप हम पहले सबसे पहला जो हमने आर्टिकल किया था उसमें हम शो कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, n क्या होता है, n आपके यहाँ पे कैपिटल N फ्रिक्वेंसी को शो करते हैं। तो आंसर क्या बना 150 इंटू 0.32 प्लस 0.68 रेज टू पावर 4। तो कई बुक्स के हिसाब से यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट है, बट ये क्वेश्चन कंप्लीट होता नहीं है एक्चुअली। जब तक आप इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ना निकालो तब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो यदि मुझे आपको चाहिए फॉर x इक्वल टू 0 के लिए चाहिए, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी मेरी 4c0 p रेज टू पावर 0 एंड q रेज टू पावर 4। सिमिलरली x इक्वल टू 1 के लिए जब निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 4c1 0.32 पावर 1 0.68 पावर 3। x इक्वल टू 2 के लिए 4c2 0.32 पावर 2 0.68 पावर 2। x इक्वल टू 3 के लिए 4c3 0.32 पावर 3 and 0.68 power 1, and for x equal to 4 it comes out to be 4c4 0.32 पावर 4। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको प्रोबेबिलिटीज़ मिल जाएंगी व्हेन x इक्वल टू 0 1 2 3 4। एक टेबल क्रिएट करेंगे आप, x क्या है यहाँ पे 0 1 2 3 4, यहाँ पे आप क्या डालेंगे px डालेंगे, px की वो वाली वैल्यूज़ होंगी जो यहाँ से आपके निकल के आएंगे, और फिर आप डालेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी बच्चे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपकी आएगी px इंटू एन, और n कितना है आपका 150। तो आपको सभी की सभी प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है, अपने कैलकुलेटर का आप यूज़ करेंगे और इसे 150 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज ऑल अबाउट फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द फर्स्ट आर्टिकल इज फाइंड द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चे तीन आर्टिकल्स ऐसे हैं जो पेपर में हमेशा आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल यदि एक बार क्वेश्चन पेपर में आया था फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो यदि पॉइसन का आ सकता है तो बाइनोमियल का भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल करेंगे फाइंड मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन का फार्मूला रैंडम वेरिएबल में होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या हुई सिग्मा एक्स पी एक्स। ओके, अब बाइनोमियल में पी एक्स कितना होता है, पी एक्स होता है बाइनोमियल में एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे आप एन सी एक्स को ओपन कीजिए, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल।
यहाँ पे बच्चे जब इसको ओपन करेंगे तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल p रेज टू पावर x q रेज टू पावर n माइनस x। अब एक काम करें, आप एक n कॉमन निकाल लें और एक p कॉमन निकाल लें। n p कॉमन निकालते कितना आ जाएगा यहाँ पे, n माइनस 1 फैक्टोरियल x माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल p raised to power x minus 1 q raised to power n minus 1. At last step you can see what is this. This is n minus 1 c x minus 1 p raised to power x minus 1, and this is what 1 minus p raised to power, okay, just leave it with q, n minus 1 minus x minus 1. Okay, so you can say this is binomial expansion for, this is also binomial expansion, you can check it and you can see the probability of इसका सम कितना होता है, इसका सम होता है आपका 1, तो टोटल कितना बना NP, therefore mean of the binomial distribution is NP. Now the next article is variance. Variance is what, expected value of x square minus expected value of x का whole square. Okay, but we know expected value of x कितना था, अभी 2 मिनट पहले किया हमने, NP. Now we have to find out expected value of x square. कितना होता है बेटा ये, x square px. In case of binomial कितना हो जाएगा ये, x square ncx p raised to power x q raised to power n minus x. तो जैसा पीछे था वैसा ही करना है, क्या करना है, ncx को आपने ओपन करना है, n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल p रेज टू पावर x q रेज टू पावर n माइनस x. ठीक है, अब इस चीज़ का ध्यान रखना, x स्क्वायर है अपने पास. ओके, तो x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस x, है ना. इसको क्यों ऐसा क्यों करना है, ऐसा इसलिए करना है हमें क्योंकि जब x फैक्टोरियल को मैं ओपन करूँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, x माइनस 1 x माइनस 2 फैक्टोरियल. ठीक है, तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे पहला स्टेप क्या करना है, मुझे x स्क्वायर की जगह पुट करना है बेटा ये. तो x स्क्वायर की जगह क्या पुट करूँ मैं, x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स. ओके, n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल p रेज टू पावर x q रेज टू पावर n माइनस x. ये वाला स्टेप जब हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी सेम स्टेप्स यूज़ होते हैं मीन और वेरिएंस के लिए. तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक पहली बार हो सकता है अजीब लग रहा हो, बट ये रूटीन की चीज़ हैं और आराम से हो जाती हैं. हाँ बेटा, अब इसको क्या करें, आप अलग अलग कर लें, n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल p रेज टू पावर x q रेज टू पावर n माइनस x प्लस सिग्मा x n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल p रेज टू पावर x q रेज टू पावर n माइनस x. इस चीज़ को तो आप पहचानते हो, क्यों, क्योंकि यह है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो हमने 5 मिनट पहले की, जब पिछला आर्टिकल इनफैक्ट यही था. तो इसकी इस वाले की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है NP. तो वी विल नॉट सॉल्व इट और हम इसे लास्ट में जस्ट यूज़ करेंगे और नाउ करके हम इस पर काम करेंगे. और क्योंकि मेरे पास स्पेस की दिक्कत है, आप फाइनल एग्ज़ाम के अंदर आप इस चीज़ को अलग से लिख के फिर नाउ करके शुरू करना. तो बेटा पिछली बार हमने क्या किया था, x से x फैक्टोरियल काट दिया था, इस बार भी काटना पड़ेगा. तो आप क्या करें, n इंटू एन माइनस 1 कॉमन ले लें, p स्क्वायर कॉमन ले लें. पिछली बार क्या कॉमन लिया था, p लिया था, n में से क्या लिया था, सिर्फ n लिया था. इस बार n तो ले नहीं सकते, फैक्टोरियल है, तो क्या लेंगे n इंटू एन माइनस 1. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, n माइनस 2 फैक्टोरियल, इससे कट के नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल p रेज टू पावर x माइनस 2 q रेज टू पावर n माइनस x प्लस NP फ्रॉम मीन. तो अब ये चीज़ क्या बनी, p स्क्वायर n इंटू एन माइनस 1, ओके, सिग्मा n माइनस 2c
x माइनस टू पी रेज टू पावर x माइनस टू क्यू रेज टू पावर n माइनस एक्स प्लस एन पी। ओके, तो इसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये चीज़ क्या है, ये तो कांस्टेंट है, और ये सारी चीज़ ये वही है जो हमने पिछले आर्टिकल में यूज़ की थी। कितना बन गया ये, पी स्क्वेयर एन एन माइनस वन प्लस एन पी। तो अब इसे क्या करते हैं हम, पुट यूजिंग 1 and 2, क्या है बच्चे, वेरिएंस दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर, कितना आ रहा है, पी स्क्वेयर एन इंटू एन माइनस वन प्लस एन पी, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कितनी है आपके पास, एन पी, तो ये क्या है आपके पास, एन स्क्वेयर पी स्क्वेयर। ओके, तो अब इसको ओपन करते हैं बेटा, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, एन स्क्वेयर पी स्क्वेयर माइनस एन पी स्क्वेयर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वेयर पी स्क्वेयर, इससे आपका ये कैंसिल हो गया, एन पी आपका कॉमन निकालते हैं आप, तो 1 माइनस पी दैट इज इक्वल टू एन पी क्यू। तो वेरिएंस ऑफ एन पी क्यू इज, variance of binomial distribution is NPQ, and the last article is recurrence relation in Poisson binomial distribution। और recurrence relation जनरली पेपर में पूछा नहीं जाता है बच्चे, क्योंकि सिर्फ एक बार पूछा गया था कि केमिस्ट्री में एमडी में पूछा गया था एक बार, जनरली नहीं पूछा जाता है। और यदि आप इसका जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, यदि हमें प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं, 5-6 प्रोबेबिलिटीज़ चाहिए हो, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं किसी आर्टिकल में, इन केस हमें रिजल्ट याद रह जाए। तो रिजल्ट जब भी रिकरेंस रिलेशन निकालना हो, चाहे पॉइसन का निकालना हो, चाहे बाइनोमियल का निकालना हो, आपको क्या करना होता है, पी एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई पी एक्स इज इक्वल टू, पी एक्स प्लस वन क्या होगा बेटा, एन सी एक्स प्लस वन पी रेज टू पावर एक्स प्लस वन क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स माइनस वन, और पी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। ओके, अब ये चीज़ किसके बराबर आई बेटा, बाइनोमियल, यदि मैं सिर्फ कॉम्बिनेशन ओपन करूँ, एन फैक्टोरियल एक्स प्लस वन फैक्टोरियल एन माइनस एक्स माइनस वन फैक्टोरियल। ओके, नीचे क्या आएगा, एन फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पे बच्चे काट के मैं इकट्ठा ही लिखना चाहूँगा, इसके अंदर ध्यान देंगे तो क्या हुआ, ऊपर पावर ज़्यादा है नीचे कम है, तो क्या आ जाएगा बेटा, पी ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे पावर ज़्यादा है और नीचे पावर ज़्यादा है, ऊपर पावर कम है, तो कट के पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप चेक करें, डिवाइड कर रहे हैं आप, तो क्या हो जाएगा बेटा, एन फैक्टोरियल एक्स प्लस वन फैक्टोरियल एन माइनस एक्स माइनस वन फैक्टोरियल, और ऊपर क्या जाएगा बच्चे, एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल इंटू पी बाई क्यू। अब चेक करेंगे आप, इससे ये कट रहा है, इससे काटेंगे तो क्या बनने वाला है, एक्स प्लस वन बच जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या बच जाएगा, एन माइनस एक्स, बाकी फैक्टोरियल्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इससे क्या मिला आपको, पी एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई पी एक्स इज इक्वल टू एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन पी बाई क्यू। तो पी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एन माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। This is called recurrence relation in binomial distribution, because when we get P0 and put x equal to 0 in this whole equation, I will get P1, similarly I will get P2, P3, and I can find all the possible probabilities of binomial distribution. Well, now we will give you as per previous